Dear student, Assalamu alaikum. Today we discuss our lecture number 7, class 7, ABCD, subject computer study, subject teacher Kabil Shah. My WhatsApp number 033289454996. Today we discuss chapter number 4, that is multimedia presentation. Today we discuss the following topic: multimedia presentation software, that is Microsoft PowerPoint, multimedia presentation, creating a PowerPoint presentation, slide and slideshow. बेटा अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आई होप कि आपकी समर वेकेशन बहुत अच्छी गुजरी होंगी और सेकंड टर्म की जो स्कीम ऑफ स्टडी थी वो उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 को और चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करना था। चैप्टर नंबर 2 हम इससे पहले जो समर वेकेशन हुई थी उससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे बेटा। और आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी अटेंडेंस मुझे लाजिम भेजनी है और इसको गौर सुनना है। इसके जो अगर आपको चैप्टर नंबर 2 की कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसके जो वीडियो लेक्चर्स है वो सारे मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। हर चैनल के सिलेबस में आपके पास 9th क्लास के भी पड़े हुए हैं, 6th क्लास के भी हैं, तो इसलिए आपकी हर यूट्यूब वीडियो के साथ क्लास मेंशन है, तो अपनी कंसर्न क्लास वहाँ पे लेक्चर भी मेंशन है, कौन सा लेक्चर है, ठीक है। तो पूरे चैप्टर नंबर 2 के जो वीडियो लेक्चर है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, आप उसको सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपके पास जब भी मैं कोई चीज़ वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपके सामने आ जाए, ठीक है जी। और अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आते हैं SLOs। आफ्टर कंप्लीट वाचिंग and listening this video, student will be able to understand and explain the following topic: MS PowerPoint, multimedia presentation, creating a PowerPoint presentation, slide and slideshow, concerns, short and long question. So before we starting our lecture, first of all I define what is MS PowerPoint. So MS PowerPoint is a part of application software MS Office. MS Office is a package software, package application software. There are two types of software, that is system software and application software. System software are those software which are developed to organize and manage computer hardware, like operating system, that is Windows, Linux, Unix, the DIX operating system, etc. And antivirus, language processor, etc. And application software are those software which are developed for user to solve their problem. There are multiple software available in market, in which MS Office is a one of them. MS Office is a package software. Package software are those software which are a combination of more than two software. So it consists of four software. When you install MS Office, it install automatically four software. That is MS Word. MS Word used for documentation. Agar if you write your documents, your notes, your CV, your notebook, so you can write in English. Any type of notes can be developed in MS Word. So it's used for any type of documentation. MS Excel used for calculation. When you calculate your fees, your teacher pay, and any type of calculation are performed in MS Excel. MS PowerPoint, that is our today discussed topic. MS PowerPoint is used for presentation. Presentation mean कि when you जब आपको किसी के सामने आपने अपने कोई सामने कोई चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं, सपोज अब आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है तो इसके अंदर हमें क्या बनानी पड़ती है, जिस समय जो स्क्रीन नज़र आ रही है तो ये बेसिकली क्या है, आपकी प्रेजेंटेशन बनी हुई है और ये MS पावर पॉइंट के अंदर बनाई गई है। स्लाइड्स बनाई जाती हैं इनके अंदर, स्लाइड्स के अंदर टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो वगैरह पे किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो हम इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे कि MS पावर पॉइंट को कैसे यूज़ करते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, स्लाइड क्या होती है, स्लाइड के ऊपर आप मुख्तलिफ किस्म के ऑडियो कैसे ऐड कर सकते हैं, उसके ऊपर एनिमेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा उसके ऊपर ग्राफिक वगैरह कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम इस चैप्टर के अंदर MS पावर पॉइंट को इंशाल्लाह डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा MS एक्सेस जो उसका 4 पार्ट है, इज यूज फॉर रिकॉर्ड कीपिंग। ये रिकॉर्ड
अपने एम्प्लॉयज़ का या स्टूडेंट का रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, एम एस ऑफिस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं अपने एम एस पावर पॉइंट इज अ पार्ट ऑफ एम एस ऑफिस वी डिस्कस earlier. It is used for presentation. But MS PowerPoint is widely used multimedia presentation software. Slides are used to create eye-catching presentation, and PowerPoint make it easy to add multimedia element to them. तो बेसिकली क्या होता है कि एम एस पावर पॉइंट के किस लिए यूज होता है, ये प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है और ये बेसिकली एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। और इसके अंदर क्या पड़ी होती है, स्लाइड्स होती है। स्लाइड के अंदर क्या कर सकते हैं आप, मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज एक्सेट्रा क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जो इसके क्या है एलिमेंट। Multimedia presentation. A presentation that uses slide, sound, animation, etc. is called multimedia presentation. ऐसी presentation जिसमें slides हो, sound हो, animation हो, उसको हम क्या बोलते हैं, multimedia presentation बोलते हैं. It is usually standalone presentation which include various different elements that are combined together. Content that use more than one particular medium is called multimedia. MS PowerPoint is a multimedia presentation software. तो बेसिकली क्या होता है कि जिसको तो स्लाइड्स हो, साउंड्स हो, एनिमेशन हो, इनको क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बोलते हैं। और एम एस जो पावर पॉइंट है, ये बेसिकली एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के स्लाइड, साउंड, एनिमेशन को कंबाइन कर सकते हैं। एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया जो कि टेक्स्ट कंसिस्ट ऑफ नंबर्स एंड letters. Number consist of 0 to 9 and letter consist of A to Z. Sound anything that is audioable and hereby here. ग्राफिक, प्रिंटिंग, ड्राइंग, फोटो एक्सेट्रा, एनिमेशन, ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड के। जैसा आप देखते हो, जब मैं अपनी एक स्लाइड को चेंज करता हूँ तो वो थोड़ी सी रोटेट होके आ रही है, तो बेसिकली इसके ऊपर मैंने एनिमेशन अप्लाई की हुई है। वो मैं इंशाल्लाह जब ये लेक्चर खत्म होगा तो उसको मैं आपको एक स्लाइड बनाकर स्लाइड को ऐड करना बताऊंगा, उसके ऊपर एनिमेशन कैसे अप्लाई करते हैं इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। इसका साउंड जो हमने डिस्कस कर चुके हैं। पिक्चर इज वीडियो इज अ पिक्चर इन सीरीज कम्युनिकेशन। जब आपके पास पिक्चर को मूव कराते हैं विद साउंड, तो वो आपके पास क्या बन जाती है, वीडियोस बन जाती हैं, जिसका मूवीज वगैरह आती होती है। एम एस पावर पॉइंट को ओपन कैसे करेंगे, अगर आपके पास विंडो 10 है तो उसके लिए तो स्टार्ट बटन, नीचे आपका विंडो बटन होता है जिसको स्टार्ट बटन भी कहते हैं, उस पर क्लिक करेंगे। कोई भी विंडो है आपके पास, उस पर आप एक पॉपअप मेन्यू ओपन होगा। पॉपअप मेन्यू में से आपने करना है एम एस ऑफिस को सर्च करना है, उस पर आपने पॉइंट करना है, जाकर क्लिक देना, सिर्फ कर्सर को वहाँ पे लेकर जाना है। और आगे एक और लिस्ट ओपन होगी, उसके अंदर आपने एम एस पावर पॉइंट पे जाकर क्लिक करना, तो ये क्या हो जाएगा, आपके सामने एक विंडोज की ओपन हो जाएगी जो कि किसकी है, एम एस पावर पॉइंट की है। तो ये कह रहा है कि क्लिक ऑन स्टार्ट और विंडो बटन, क्लिक पॉइंट एम एस ऑफिस दैट क्लिक एम एस पावर पॉइंट। तो वाले उसमें जो पॉपअप मेन्यू ओपन होगा उसमें से आपने एम एस ऑफिस पॉइंट करना है, और उसके बाद एक और लिस्ट होगी, उसके अंदर आपने एम एस पावर पॉइंट को ओपन करना है। न्यू विंडो इज ओपन, तो ये बेसिकली एम एस पावर पॉइंट। देखिए ये एनिमेशन आ गई हमारी। ब्लैंक प्रेजेंटेशन, अगर आपके पास अगर एम एस पावर पॉइंट का मतलब वो स्लाइड के अंदर होता है, तो अगर आप स्लाइड कैसे बनाते हो, तो व्हेन वी ओपन अ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट फर्स्ट टाइम वन स्लाइड इज सेट बाय डिफॉल्ट। जैसे फर्स्ट टाइम एक स्लाइड पहले से अवेलेबल होती है, इसके अलावा आप और स्लाइड भी ऐड कर सकते हो। तो आप न्यू ब्लैक प्रेजेंटेशन कैसे ब्लैक करोगे, उसके बाद ये है कि आप अपने ऑफिस बटन पे क्लिक करोगे, उसकी जो पावर पॉइंट की विंडोज होगी उसके अंदर से आपने ऑफिस बटन पे क्लिक करना है, और उसमें से आपने न्यू पे फाइल पे जाकर न्यू पे क्लिक करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अगर आप इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एन करेंगे तब भी वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इंशाल्लाह ये सारे आपको इंशाल्लाह लेक्चर के बाद एड करके सामने परफॉर्म कर सकते हो। New presentation dialog box will be open. तो blank presentation is created by default से blank default होगी, उस पर आप डबल क्लिक कर दें, डबल क्लिक ऑन ब्लैंक प्रेजेंटेशन एंड न्यू प्रेजेंटेशन, या उस पर क्रिएट कर दीजिए, एक बटन सा होगा उस पर सिंगल क्लिक कर दें, या उस ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे डबल क्लिक करें, तो वो क्या हो जाएगा, आपके सामने ओपन हो जाएगा। स्लाइड क्या होता है, अ सिंगल पेज ऑफ प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट इज कॉल्ड स्लाइड। कोई भी सिंगल पेज जिसको क्या बोलते हैं आप,
पावर पॉइंट का जो सिंगल पेज होता है उसको आप स्लाइड बोलते हैं, उसके अंदर आप स्किल टेक्स्ट, साउंड, ग्राफिक, एनिमेशन वगैरह करते हैं, उसके ऊपर अप्लाई करती है। और जब आप स्लाइड बना लेते हैं उनको स्लाइड शो करते हैं, और स्लाइड शो इज डन आफ्टर नंबर ऑफ डिफरेंट स्लाइड आर मेड a PowerPoint by running a slideshow, all the graphics, sound, transition, animation, etc. are visible to the उसको स्लाइड शो के अंदर आगे सारे जितने भी हमने साउंड लगाया हुआ है, कोई एनिमेशन अप्लाई की हुई है, वो सारी चीजें क्या हो जाती हैं, वो स्लाइड शो के अंदर डिस्प्ले हो जाती है। तो बेसिकली हम जितना काम करेंगे स्लाइड के ऊपर काम करें, तो ये बेसिकली हमारे मसले जो 14-15 स्लाइड नहीं है, वो बेसिकली क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। मैंने क्लिक करने पे वो देखिए कौन स्लाइड आ रही है। न्यू स्लाइड कैसे ऐड करते हैं? ओपन अ पावर पॉइंट है, जैसे आपने एमएस पहले सबसे पहले एमएस पावर पॉइंट ओपन करें, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आप न्यू स्लाइड का एक बटन होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक न्यू स्लाइड उसमें ऐड हो जाएगी। इस आगे कैसे कि उस पर न्यू स्लाइड का बटन, उस पर क्लिक करते जाते हैं, उसमें मल्टीपल स्लाइड उसमें ऐड होती जाती है। इसी तरह अगर आपने उसमें स्लाइड शो करना है तो उसके लिए स्लाइड शो का बटन है, उस पर क्लिक कर दें, तब भी वो ऑप्शन देगा फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड, फ्रॉम एग्जैक्ट स्लाइड। तो आप या उसके लिए F5 प्रेस कर देगा, बटन से नहीं, अगर आप कीबोर्ड से करते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की है F5 कर दें, और क्या करते हैं उसके बाद उसको व्यू करके उसको सेव कर लीजिए। अब ये हमारे आज के टॉपिक थे। इंशाल्लाह हम ये वाले इसके कुछ क्वेश्चन है, कंसर्न क्वेश्चन वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका एमसीक्यूज है, इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह 2 दिन बाद डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एमसी फिल इन द ब्लैंक्स है, वो भी इंशाल्लाह उसका। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका अपनी नोटबुक पर लिखना है, ठीक है, या फिर इस वीडियो को यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप करके अपना इनको नोट कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन नंबर 3 या फिर नोटबुक पे नोट करना है। तो यही आपकी आज की असाइनमेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, ये बेसिकली क्या है, आपकी आज की असाइनमेंट है। आपने इसके साथ अपना रोल नंबर, अपना नेम और आपकी सेक्शन लाजमी ये सेंड करें ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क की जाए। जो बच्चे ने ये क्वेश्चन सेंड ना किया तो उसकी अटेंडेंस मार्क्स नहीं की जाएगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह मुझे कल 9 बजे तक लाजमी ये मुझे इसको पहले इसको रिमेंबर करें और फिर मुझे इसको क्या करते हैं, सेंड कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप ऑफ मीडिया ऑब्जेक्ट आर in multimedia presentation? Number 1, text. Text consists of number and letter. Sound, anything that is audioable, graphic or image, painting, drawing and photo, etc. Animation, object moving around. Video, picture, incident accomplished by sound. तो बेसिकली क्या है, मल्टीमीडिया के जो एलिमेंट्स है वो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, डिस्क्राइब a slideshow in PowerPoint. A slideshow means to display a slide on full screen. A slideshow is done after number of slides are made in PowerPoint by running a slideshow. All the graphics, sound, transition, animation, etc. are visible. तो इंशाल्लाह ये हम पहले ऑलरेडी इसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 का पार्ट नंबर 2 है जो आज के टॉपिक से कंसर्न है। क्वेश्चन नंबर 4 को आपने रफ नोटबुक में लिखना है ताकि जब क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 को अपनी रफ से नीट टू डाल देंगे। तो why do you want to make your presentation impactful and memorable? A multimedia presentation is essential a combination of audio, video, image, and sound. Using these multimedia objects, we can present some type of important information to the audience. One of the best way to get your audience attention and make to memorable presentation is by using multimedia presentation tool like Microsoft PowerPoint। आप ज़रा किसी के सामने क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली अपनी प्रेजेंटेशन जो में आप कहते हैं जब आपके पास कुछ वीडियो की सूरत में आ रही होती है तो उसको मेमोराइज करना आपके लिए थोड़ा सा क्या होता है, ईजी होता है। तो उसको आप इजीली कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो अब इसके जो कुछ स्टेप्स हैं वो बच्चे मैं आपको परफॉर्म करने लगा हूँ, ठीक है। ये स्लाइड आपके साथ नजर आ रही है, ये बनी हुई है। तो आप स्लाइड कैसे बनते हैं तो मैं थोड़ा इसको पहले, तो वही बात है कि अगर इसको ओपन कैसे करना है तो बेसिकली ये इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, ये यहाँ पे जाए, इसके ऊपर मेरे पास यहाँ है, यहाँ पे स्क्रीन एम एस पावर पॉइंट लिखूंगा, एम मैंने डाला था, ये आ गया पावर पॉइंट। तो ये आपके सामने ओपन हो गया, ठीक है, ये ओपन हो जाएगा। इस पे अगर आपने सबसे पहले क्लिक करना है कि न्यू स्लाइड कैसे होगी, न्यू पे क्लिक कर दें तो ये ब्लैंक आई हुई है, इस पर डबल क्लिक कर दें तो सामने ओपन हो जाएगी। अगर आप इसको ऐसे ओपन नहीं करना चाहते तो आप क्या करें, न्यू पे जाकर
इस पर क्रिएट पे भी जाकर कर सकते हैं, एक प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हो। डबल क्लिक को ओपन किया तो ज़रा क्रिएट पे करने की जरूरत है, इसको भी कर सकता है। ये अगर सामने एक स्लाइड क्या होगी, ओपन होगी। अगर आपने करनी है और स्लाइड ओपन करनी है तो होम पे जाएंगे, न्यू स्लाइड नजर आ रहा है, यहाँ पे करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगी, एक और स्लाइड ओपन हो जाएगी। तो कुछ स्लाइड डिलीट करनी तो डिलीट कर दें। अब ये एक स्लाइड है जिसके ऊपर मैं लिखता हूँ फर्स्ट, ऐसे फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट स्लाइड लिख दिया मैंने, इसके ऊपर एक और स्लाइड मैंने ऐड की, इसमें न्यू स्लाइड में देखिए क्लिक किया, इस पे मुख्तलिफ स्लाइड की पैटर्न है जो आपको अच्छा लगता है वो बना लें। इसमें मैं लिख देता हूँ सेकंड स्लाइड, ये लिख दिया। एक और मैंने ऐड की जिसपे मैंने जाकर लिख दिया था थर्ड स्लाइड, ठीक है। अब ये स्लाइड तो आपने अप्लाई कर दी। अब इसके ऊपर एनिमेशन कैसे अप्लाई करते हैं, ये एनिमेशन का ऑप्शन नजर आ रहा है, ये एनिमेशन है, ठीक है। प्रीव्यू भी साथ बता रहा है, नजर आ रहे हैं आपको, ठीक। ये इसमें ऐसे आ रहे होते हैं, ऐसे जो मैंने अप्लाई की हुई है वो ये वाली अप्लाई की हुई है जो आपके सामने आ रही है, ठीक है। तो ऐसे भी आ सकते, तो ये मुख्तलिफ एनिमेशन है, सारी एनिमेशन बेटर जो आपको अच्छी लगती है तो उसके ऊपर करनी आप अप्लाई कर दें। बिकॉज मैं मुझसे कौन सी अप्लाई कर देता हूँ, ये वाली, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने कुछ साउंड ऐड करना है तो आपको साउंड की आवाज़ भी आएगी, तो ज़रा साउंड यहाँ से ऐड कर सकते हैं, स्पीड इसकी यहाँ से कोई भी कर सकते हैं और अप्लाई टू ऑल कर देते हैं। आप स्लाइड शो कैसे करते हैं, स्लाइड शो का ऑप्शन नजर आ रहा है, इसमें लिखा हुआ फ्रॉम बिगिनिंग, तो ज़रा मुझे फ्रॉम करंट स्लाइड, फ्रॉम कस्टमाइज स्लाइड इक्वल कुछ स्पेसिफिक स्लाइड से देख रहे हैं, ठीक है। मुख्तलिफ होता है तो मैं फ्रॉम बिगिनिंग कहता हूँ, तो ये फर्स्ट स्लाइड आ गई, ठीक है। सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, और ये इसका व्यू क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। सेव करना वही बात है कि यहाँ पे क्लिक कर दें, यहाँ पे जाकर सेव पे क्लिक तो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ज़रा इसको सेव नहीं करता तो ज़रा बच्चे ये आज आपका क्या था, काम था, इसको आपने और सुनना है। फिर आपको बताना है कि आपको कैसा, और आपने अपने आज का जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक है। तो आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल करना है और मुझे आपने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है, और आपने अपना इस जो असाइनमेंट आपको गिवन दी गई है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 के साथ आपने मुझे अपना रोल नंबर, नेम, ये सारी चीज़ें आपने मुझे लिख कर भेजनी है ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क्स हो सके। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।